Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. Today we will study nervous system based on UGC NET physical education syllabus. We will study neuromuscular system, neuromuscular junction, transmission of nerve impulse, kinesthetic sense organ, neuron control of motor skill. So if you are preparing for any exam or UGC NET, then this video is for you. Let's proceed. If you talk about the lecture content, we will cover just introduction of PNS, CNS. We will discuss about the basic terminologies related to the nervous system. We will study neuromuscular junction, motor unit, generation of nerve impulse, depolarization, polarization, resting membrane potential, excitation potential, and these kinesthetic receptors, kinesthetic sense organs. These are the various kind of kinesthetic sense organ, size principle, and function of brain during physical activity, or the role of various part of brain for motor control. And we have divided the video in first part. We will study specifically this part, and the second part we will study about the kinesthetic sense organ and neural control of motor skills. So let's proceed. If we talk about the CNS, central nervous system is divided into, nervous system is divided into two parts: central nervous system, peripheral nervous system. Okay, now peripheral nervous system, if you see further, it classify into sensory and motor is further classified into autonomic nervous system and somatic nervous system. अगर हम somatic autonomic nervous system की बात करें जो कि खुद से काम करता है, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system अगर हम देखें तो dominant होता है during physical activity, or when you are physically or emotionally very hyper, emotional trigger has been increases. At that time, sympathetic nervous system will be a dominating role. यहाँ पे क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है मसल्स की तरफ. तो दिस आर द कंडीशन अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. बट व्हेन वी आर इन अ रेस्ट और रिलैक्स पोजीशन, उस टाइम पे हमारा जो डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है वो करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. उस टाइम पे हमारा वेगल टोन मेंटेन रहता है, मीन्स जो हमारा हार्ट रेट है उसका हार्ट रेट मेंटेन रहता है 100 बीट्स पर मिनट तक ड्यू टू वेगस नर्व. मोटर न्यूरॉन की अगर बात करें तो जो भी नर्व इंपल्स कैरी होता है फ्रॉम दिस नर्व टू द मसल फाइबर इज कैरीड थ्रू मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन इज नथिंग, इज जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. और अगर हम इस मोटर न्यूरॉन जो इनर्वेट होता है मसल फाइबर में, इस पूरे यूनिट को हम बोलेंगे मोटर यूनिट. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मोटर यूनिट, you can just visit our previous videos regarding motor unit, in which detailed information is given regarding motor unit. If you see the function of dendrite, it receives the nerve impulse, axon passes the nerve impulse, and axon cover this layer known as myelin sheath. The neuron which is covered with myelin sheath is known as myelinated neuron, which transfer the impulse very fast and rapid manner, and it is also known as saltatory conduction. So as I told you, the nerve impulse carried by the afferent nerve towards CNS, and afferent fiber carries nerve impulse away from the CNS. If we talk about the Schwann cell, it is a protective covered layer, insulating layer of axon. Axon के ऊपर एक लेयर होती है. ओके, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड प्रोटीन कॉल्ड माइलिन, और ये माइलिन ही फॉर्मेशन करते हैं माइलिन शीथ का. एंड दिस आर द माइलिनेटेड न्यूरॉन. अगर न्यूरॉन का डायमीटर अगर ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, एंड दैट वी कॉल इट साल्टेटरी कंडक्शन. डेंड्राइट रिसीव द नर्व इंपल्स. एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब होती है. दिस आर द एंडिंग, और वी कैन से टर्मिनल synaptic knob. It is a cell body, it is a nucleus. Okay, these are important thing, just you can read it out. Now neuromuscular junction क्या होता है, जब मोटर न्यूरॉन किसी मसल से ज्वाइन होता है उस पर्टिकुलर साइट को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन.
अब इस पर्टिकुलर साइट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, इस वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। वेन एवर दिस नर्व इम्पल्स, जो भी हमारा एक्शन पोटेंशियल इस एंडिंग तक पहुंचता है, तो क्या होता है कि सिनेप्टिक क्लेव्स में से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और यहाँ रिसेप्टर्स में जाके कंबाइन होता है। वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। यहाँ पे देखिए हम, तो टर्मिनल सिस्टर्नी होती है। इसमें क्या होता है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन गैदर्ड हो जाते हैं। दिस इज द मोटर एंड प्लेट, ओके। इट इज अ लेयर ऑफ सार्कोलेमा, इट इज अ पार्ट ऑफ मसल्स, and this is the part ending of motor neuron. As you know, sarcolemma forms a pocket is called synaptic cleft. Okay, you can say this is the synaptic cleft. इसके बीच में जो गैप होती है दो न्यूरॉन के बीच में, या फिर यहाँ पे अगर हम किसी सेल्स के बीच में देखें न्यूरॉन एंड सेल, तो इस गैप को हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। Whenever this सिनेप्टिक क्लेफ्ट स्पेसिफिकली अगर मसल्स में बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट। वेन एवर नर्व इम्पल्स रिचेस, जब भी यहां पे मैंने आपको जैसे बताया, लेट मी जस्ट मेक यू क्लियर। सपोज दिस इज योर नर्व इम्पल्स, दिस इज योर न्यूरॉन, वेन एवर द नर्व इम्पल्स रिचेस टू दिस एयर एंड, यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है, यहाँ पे अगर इम्पल्स पहुंचते हैं तो जो वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है वो रिलीज होता है। एट द एंड यहाँ पे हमारी जो मसल्स है, उस मसल्स में होते हैं रिसेप्टर्स। वो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, इस रिसेप्टर से जाके कंबाइन होता है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, ये जो रिसेप्टर्स, जो मसल्स की सेल्स है, इनकी क्या होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब ये यहां से आके रिसेप्टर से कंबाइन होगा तो इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। परमेबिलिटी मींस अलाउंस, किसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सोडियम आयंस की। नॉट दिस सोडियम आयंस ट्रेवल इनटू द सेल, जैसे जैसे ये सोडियम आयन इनसाइड द सेल जाएंगे, क्या होगा, डिपोलराइजेशन होते जाएगा। आगे हम देखेंगे ये, बस अभी इतना जानिए कि न्यूरोमस्कुलर के एंड में जब भी नर्व इंपल्स यहां तक पहुंचता है, मतलब एक करंट पहुंचता है, सिंपल भाषा में अगर देखें, सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है जो वेसिकल में स्टोर्ड है, वो रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जिस एंडिंग पार्ट में मसल सेल्स की तरफ, और यहाँ पे रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स इसको रिसीव करते हैं, एंड रिस्पॉन्स टू दिस इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन हैविंग टू प्रॉपर्टीज। एक्साइटेबल टिश्यू, इट इज न्यूरॉन इज एक्साइटेबल टिश्यू, इट पोजेस टू प्रॉपर्टी, इरिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी स्टिमुलस मिलेगा, जब भी मैसेज मिलेगा, न्यूरॉन क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। कंडक्टिविटी में तो कंडक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट करता है, वैसे ही हमारा न्यूरॉन क्या करता है, इंपल्स को कैरी करता है, कंडक्शन करता है, ट्रांसफर करता है। नाउ दिस इज द कंडीशन, दिस इज द मेन टॉपिक, और वी कैन से कई बार हमने सुना होगा ये वर्ड, समझने में कई बार मुश्किल होता है, बट इट इज वेरी सिंपल। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मेक इट सिंपल। जब भी आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक वायर से करंट पास होता है, तो क्या होता है कि जो भी बल्ब है वो क्या होता है, जलता है, ग्लो करता है। ओके, सो दिस इज फ्लोइंग ऑफ करंट, वी कैन से। जब भी नर्व इंपल्स कैरी होता है, इट मींस ये डिपोलराइजेशन हो रहा है, मूविंग डिपोलराइजेशन हो रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक्टिविटी चल रही है, और जब यहां पे लाइट का ऑफ हो रहा है, मींस नो करंट इज फ्लोइंग, मतलब करंट का एंडिंग होने जा रहा है, तो वो क्या है, रिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, डिपोलराइज स्टेट मतलब कि बल्ब का जलना, मतलब करंट पास हो रहा है, और रिपोलराइजेशन स्टेट मतलब समझ लीजिए पोलराइज होना। पोलराइज मतलब बल्ब का ऑफ हो जाना। ओके,
अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा बल्ब सपोज जल रहा है, ये ऑन बल्ब है, और इधर की साइड देखें तो ये ऑफ है। अब ये है नॉर्मल सा स्टेट। अगर हम इधर की साइड में इलेक्ट्रिक करंट का अगर मूवमेंट हो रहा है, वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड डीपोलराइजेशन एंड इट इज अ फाइनली रीपोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। तो अगर हम इसकी साइड जाएंगे तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इफ यू मूविंग टुवर्ड्स द पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट मतलब कि बल्ब इज ऑफ। तो अगर इसकी साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये रीपोलराइजेशन। क्लियर है? एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दिस डिपोलराइज्ड स्टेट, तो ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन। तो ये है हमारा बल्ब का जलना। अगर यहां पे तो इलेक्ट्रिक करंट कब काम करता है, जब यहां पे बल्ब ऑन होता है। तो वैसे ही सेम हमारे न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और मसल्स तभी काम करेगी जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का पास होना मतलब डीपोलराइजेशन का होना, और इलेक्ट्रिक करंट का ऑफ होने की प्रोसेस को हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन स्टेट। सो व्हेनेवर यू गॉट एनी काइंड ऑफ इंपल्स, सपोज यू गॉट एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, so that means electric current start flowing in your wires, in your nerves, तो वो जा रही है डीपोलराइजेशन की ओर। और जब हम डीपोलराइजेशन स्टेट को इतना इनफ अचीव कर लेंगे जिससे कि बल्ब जल जाए। अब करंट का मूवमेंट, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हर बार करंट मूवमेंट हो रहा है तो बल्ब तो ऑन नहीं हो जाता ना। इट रिक्वायर्ड सम मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए तब इसको जलाने के लिए बल्ब को। डेट मिनिमम अमाउंट इज अ थ्रेशोल्ड, एंड इफ यू रिलीज दैट थ्रेशोल्ड एंड अचीव द करंट, द ऑप्टिमम करंट required for the muscular contraction or to perform any action is known as action potential. तो अगर हम देखें तो ये है हमारा नॉर्मल स्टेट, करंट का मूवमेंट करवा रहे हम ताकि यहां पे एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, इसे बोलेंगे डीपोलराइजेशन। इस स्टेट में अगर हम आ गए, इस स्टेट में अगर आप आ चुके हो तो यहां पे क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। और इफ वी गो अगेन टुवर्ड्स मेकिंग इट ऑफ, तो ये क्या है, रिपोलराइजेशन। एंड इट इज अ फाइनली व्हेन यू अचीव दिस पोजीशन, इट इज अ पोलराइज्ड स्टेट, एंड whenever you achieve it, it is a depolarization। और ये स्टेट को बोलेंगे हम जिसमें हमारा ऑप्टिमल डिपोलराइजेशन हो चुका है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट पहुंच चुका है, उसे हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। सो दैट इज द पोटेंशियल व्हेन द मसल्स एक्चुअली द इलेक्ट्रिक करंट वर्क। ये जो हमारा न्यूरो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तभी एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। सो यू रिक्वायर्ड इन मिनिमम enough amount of current or depolarization level so that it can achieve action potential. After that, achieving action potential, acetylcholine released from the vesicle, and after releasing acetylcholine, sodium permeability increases, and after that calcium releases, and this whole process of muscular contraction or sliding filament theory process. So you can see this structure here, you can see यहां पे क्या है, स्टिमुलस जैसे ही मिला रिपोलराइजेशन की तरफ बढ़ा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, सोडियम आयंस सेल के अंदर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और एक्शन पोटेंशियल अचीव होते जा रहा है। एट द एंड, एट दिस स्टेज रिपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम आयंस आउट होते जाते हैं, आउट होते जाते हैं, आउट हो जाते हैं, और ये हो जाता है हमारा रेस्टिंग स्टेट। आफ्टर डेट ये ज्यादा लेवल पे नीचे हो जाता है, ज्यादा ही हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ओके, नाउ ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन, अभी हमारा कोई मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन हमारी जो न्यूरॉन्स की स्टेट है वो है लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, सॉरी, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
जब नर्व इंपल्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी होती है तो इसको मूविंग करना होता है टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, मींस लेस नेगेटिव साइड. यू कैन सी हियर दिस स्टेज means depolarization becoming less negative and repolarization becoming more positive, more negative side. Depolarization moving towards positive side और becoming less negative. ओके ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है डिपोलराइजेशन, इतना इनफ पॉजिटिव साइड में चले जाए कि बल्ब ऑन हो जाए और हमारा मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाए, व्हाट वी कैन से एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाए. नाउ हियर जैसे मैंने अभी क्या बोला, बल्ब ऑन, लेस नेगेटिव, मूविंग टुवर्ड्स, दिस इज द नेगेटिव साइड एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड, मूविंग टुवर्ड्स लेस नेगेटिव साइड, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चार्जेस क्लोजर टू जीरो, जीरो की साइड जा रहा है ना चार्जेस, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव साइड में जा रहा है, फ्रॉम दिस नेगेटिव पार्ट टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक करंट मूव. रिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, again back to this negative side, negative membrane potential, more negative value, resting membrane potential अचीव होता है. तो एट द रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एंड बिकम पोलराइज्ड. तो ये क्या है हमारा, दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखें तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली -70 MV होता है. अगर हमें बल्ब जलाना होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन कराना होता है तो इसको जाना होता है पॉजिटिव साइड में. ओके और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे पॉजिटिव साइड में, डिपोलराइजेशन. व्हेन यू जस्ट आफ्टर दिस एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, उसके बाद तुरंत इमीडिएटली एक्शन पोटेंशियल अचीव होने के बाद में रिपोलराइजेशन होते जाता है. रिपोलराइजेशन होना मतलब अगेन बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पोलराइज स्टेट आपको जैसे मैंने बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ही बोलते हैं पोलराइजेशन स्टेट. उसमें क्या होता है, इनसाइड द चैनल आर मोर नेगेटिव इनसाइड द सेल, व्हेन द चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफर, द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट. जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा चार्जेस का, आयंस का, तो ये क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. ओके और इसे हम पोलराइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं. इट इज मोर नेगेटिव साइड. इफ यू टॉक अबाउट डीपोलराइज्ड स्टेट, क्या होता है, लेस नेगेटिव साइड, ग्राफ का ऊपर की साइड जाना. ओके तो इनसाइड सेल बिकम लेस नेगेटिव रिलेटिव आउटसाइड. इस स्टेट में क्या होता है, इनसाइड का जो सेल है यहां पे क्या था, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव इनसाइड द सेल. अब जब रेस्टिंग में डिपोलराइजेशन होता है, जब इंपल्स जनरेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ऊपर की साइड जाते हैं, तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है, लेस नेगेटिव होते जाता है, मींस पॉजिटिव आयंस कम होते जाते हैं, पॉजिटिव की साइड में बढ़ते जा रहा है, लेस नेगेटिव. The potential difference across the membrane decreases. The difference will be less polarized. When this happens, the membrane is said to be depolarized state. Thus, depolarization occur at time the charges difference become more positive than resting membrane potential of -70 MV more closer to zero. तो depolarization का मतलब बताया आपको मैंने कि चार्जेस लेस नेगेटिव की साइड जाना, रिपोलराइजेशन की तरफ. तो ये जो डीपोलराइज स्टेट है, मतलब डीपोलराइज स्टेट मतलब क्या होना, कि मूविंग टुवर्ड दिस पॉजिटिव साइड और जस्ट कीपिंग अवे फ्रॉम दिस -70 MV in a positive direction. So that is a depolarized state and this, it is a polarized state. Here it is a polarized state becoming a negative side. Okay, so this is the difference. You can just see. Again you can see here depolarization become less negative moving towards positive side. Resting membrane potential I already told you क्या होता है, जब इनसाइड द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साइड में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, उस टाइम पे होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, thus न्यूरॉन इज पोलराइज्ड. ठीक है, पोलराइज्ड मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल.
Negative charges are more inside the cell. Resting membrane potential of neuron is generally कितना होता है, ये रेंज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन की. Now resting membrane potential, again if you talk about neuron at rest कितना होता है नॉर्मली -70 MV. It is caused by uneven separation of charges. I already told you. अब क्या होता है ड्यूरिंग दिस कंडीशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ऑन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन. सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे क्या होता है, जब आप रेस्ट में कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल है ना, तो पोटेशियम ज्यादा होते हैं इनसाइड ड्यूरिंग रेस्ट एंड सोडियम आउटसाइड ज्यादा होते हैं. और हमने क्या देखा कि जब डीपोलराइजेशन की स्टेट होती है तो क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि परमेबिलिटी सोडियम की बढ़ जाती है. जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो सोडियम क्या हो जाता है, अंदर की साइड में मूव करते जाता है इनसाइड द सेल. अब सोडियम इनसाइड दिस सेल मूव करते जा रहा है तो क्या होगा, ये हो रहा है डीपोलराइजेशन की स्टेट में जा रहा है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ब्रेक करते हुए डीपोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर डीपोलराइजेशन होते जाता है, ऐसे वेव की तरह चलता है ये. जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होते जा रहा है वैसे वापस में ये कि रिपोलराइजेशन की तरफ बढ़ते जाता है. दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल depolarization after enough optimum level of generating impulse, or we can say depolarization state, action potential achieve, acetylcholine release, sodium get inside the cell, and further calcium ion release and sliding filament theory takes place. This is the threshold point and this is the repolarization state. An action potential is produced by an increasing sodium conductance in the neuron. Now one thing we need to get to know, जब क्या होता है सोडियम आयन इनसाइड बढ़ते रहते हैं, जैसे डीपोलराइजेशन होते जा रहा है परमेबिलिटी इंक्रीज होते जा रही है, सोडियम आयन इनसाइड दी जाते जा रहे हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते जा रहा है. ये तीनों चीजें एक साथ होते जा रही है. डीपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल और जनरेट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल, और सोडियम आयन इनसाइड द सेल मूवमेंट होते जा रहा है सोडियम आयन का. सोडियम इंटर द न्यूरॉन एंड चार्जेस बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, लेस नेगेटिव जाना मतलब क्या होना, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना. रेस्टिंग के टाइम पे क्या था, रेस्टिंग के टाइम पे क्या था, इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्जेस ज्यादा थे. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हुआ इनसाइड द सेल. डीपोलराइजेशन मतलब अब अपने एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ जनरेट कर लिया. व्हेन न्यूरल मैसेज इज जनरेटेड, स्टिमुलस ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ रीचेस अ मेम्ब्रेन, ओपन अ सोडियम गेट. ठीक है, डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है, जब स्टिमुलस होता है तो सोडियम गेट ओपन होते हैं, अलाउ sodium ions to diffuse into the neuron and making inside the cell more positive. That is a depolarization state. That thing I already told you is all. Okay, जब स्टिमुलस आता है सोडियम अंदर की साइड में बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे सोडियम की वेव इनसाइड जाते जाएगी वैसे वैसे डीपोलराइजेशन की वेव बढ़ते जाएगी. यू कैन सी यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम अंदर जाते जा रहे हैं, डीपोलराइजेशन होते जा रहा है. When a depolarization achieve and threshold level, उस पे क्या होगा, उस टाइम पे नर्वल इंपल्स जनरेट हो जाएगी. ओके, लेट मी कंक्लूड यू. जैसे जैसे सोडियम आयंस ये बढ़ते जाएंगे अंदर की साइड में, ये डीपोलराइजेशन भी बढ़ते जाएगा और एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने के बाद में इट रिक्वायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम थ्रेशोल्ड, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. मींस डीपोलराइजेशन ही एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है. डीपोलराइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है एक्शन पोटेंशियल के लिए. एंड एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इंपल्स का जनरेट होना.
एक्शन पोटेंशियल का मतलब नर्व इंपल्स का जनरेट होना. So this is due to depolarization and it is due to sodium ions. Got it? After action potential generated, sequence of ionic exchange occur along a axon to propagate a nerve impulse. As I told you, ionic exchange along the neuron occur in a sequential fashion at around nodes of Ranvier. आफ्टर डिपोलराइजेशन, अब क्या होता है डिपोलराइजेशन के आफ्टर क्या होता है, इमीडिएटली रिपोलराइजेशन हो जाता है. सो यू कैन सी हियर एट रेस्ट, ये रेस्ट का टाइम है, पोटेंशियम आयन इनसाइड ज्यादा है. ठीक है, पोटेंशियम इनसाइड दी ज्यादा है यहाँ पे, और ये नेगेटिव आयंस वी कैन से अल्टीमेटली नेगेटिव इनसाइड द सेल इज मोर. नाउ दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन. यहाँ पे देखिए अब जैसे जैसे क्या हुआ, when the membrane reach the threshold, sodium channel open and some sodium diffuse inward and membrane depolarization. अब क्या होता है यहाँ पे, सोडियम आते जाता है, अंदर आते जाता है, स्टिमुलस ये हमारा क्या हो रहा है, इंपल्स का ट्रेवलिंग हो रही है. डिपोलराइजेशन का मतलब इंपल्स का ट्रेवलिंग हो रही है, थ्रेशोल्ड का ये स्टिमुलस का पासेज होना. ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम आयन इनसाइड गेटिंग इनसाइड दिस सेल. ये बढ़ रहा है हमारा रिपोलराइजेशन स्टेट, सॉरी डिपोलराइजेशन टुवर्ड मोर पॉजिटिव साइड, है ना. सोडियम ओपन हुआ, अगेन आफ्टर इमीडिएटली क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है. तो सबसे पहले क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर क्या हुआ, डिपोलराइजेशन. अब आफ्टर जनरेटिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल इमीडिएटली जनरेटेड एट द एंड, एंड इमीडिएटली आफ्टर डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता है. That is resting membrane potential again. Now this all at the end synaptic transmission के टाइम पे क्या होता है वहां पे, अब जब यहां पे हमारा एक्शन पोटेंशियल पहुंच चुका है, तो यहां पे मेम्ब्रेन में एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, व्हाट वी से acetylcholine is present there. After releasing the synaptic cleft, this neurotransmitter bind to receptor. Okay, this neurotransmitter bind to receptor, which produce series of graded depolarization in dendrite and cell body. The graded depolarization is known as excitatory postsynaptic potential. Now this इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक का मतलब पता है आपको कि ये जो सिनेप्टिक है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जो पास्ट वाली मेम्ब्रेन है ना, वहां पे हमारा जब डिपोलराइजेशन स्टेट अचीव हो चुकी है, न्यूरोट्रांसमीटर का पासेज हो चुका है, तो वो जनरेट ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड डिपोलराइजेशन को जनरेट कर लेगा, और उससे हम बोलेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज, postsynaptic neuron is depolarized to threshold and action potential is generated. Okay, simply whenever the action potential reached here, acetylcholine release and this postsynaptic membrane potential is generated and we can say graded potential depolarization. अब ये इतना जनरेट करने के बाद में यहाँ पे अपना एक्शन पोटेंशियल अगेन जनरेट होगा. Now acetylcholine release and this all I already told you. अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एसिटाइलकोलिन तो रिलीज हो चुका है. अब अगर एसिटाइलकोलिन कंटिन्यू यहाँ पे मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, लगातार मस्कुलर कंट्रैक्शन होता रहेगा. अब ये हमारा भाई ये क्या कर रहा है, लगातार इसको कोई बोल ही नहीं रहा कि रोक, अब रोकने वाला कोई होना चाहिए, राइट. एक्शन एक बार तो यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक में न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठ चुका है. अब ये अगर लगातार यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा तो क्या होगा, लगातार कंट्रैक्शन होता रहेगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल. तो हमें यहाँ पे एंड अप करना है. तो एंड अप करने के लिए क्या है, डी जनरेटिंग एंजाइम है acetylcholinesterase. This degenerate the acetylcholine so that it can again become resting in a resting position. The enzyme break down in acetylcholine into acetyl and choline, thus remove the stimulus for depolarization. अब acetylcholinesterase नहीं होता तो क्या होता है, लगातार मस्कुलर कंट्रैक्शन होता रहता, जब लगातार डिपोलाइजेशन होते रहता. इसलिए यहाँ पे क्या है, acetylcholinesterase है, वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा एसिटाइलकोलिन को एसिटाइल और कोलिन में, और ब्रेक करेगा, रिमूव करेगा डिपोलाइजेशन स्टेट को. तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स.
how does nervous system influence our exercise? We will study muscles, spindle, Golgi tendon organ, autogenic inhibition. In all this we will study in upcoming video. जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद.